Hello, the second year students of MN Homeopathic Medical College. Today we will discuss about a topic which is written in aphorism number 5 particularly, and also in some other aphorism. The topic is accessory circumstances. This is a class of organon of medicine. So why we are going to study this today, as because we have already started the video lecture one after another to read the organon authentically from Hahnemann's writing. And in the previous lectures I have discussed the how to study the organon and from where to study the organon, and what is the basic procedure, what is the method of studying organon. So today on the sequence I had selected this topic because it is very important for us, not only in part of the organon but also in part our practice, as because a second year student, they are just started studying the pathology and other allied subjects which is related to the practice, and this is also another important thing which the physician also has to remember in his practice. So first of all, so this is the accessory circumstance. This is written in, first of all, aphorism number 5. Then we get accessory circumstance in aphorism number 94 and footnotes 81. I repeat, accessory circumstances is given in section number 5, 94, footnote 81. Another aphorism number 208, it also contains accessory circumstances. It is out of the syllabus of your second year students. Now what is the accessory circumstances? एक्सेसरी सर्कमस्टेंस का मतलब क्या है और एक्सेसरी सर्कमस्टेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले मैं एक बार आपको एफोरिज्म नंबर 5 को पढ़ने को बोलूँगा. तो जिस एफोरिज्म नंबर 5 में शुरू में लिखा है कि जो फिजिशियन को एक्यूट डिजीज़ में एक्साइटिंग कॉज के बारे में और क्रॉनिक डिजीज़ में, पूरा हिस्ट्री ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ में फंडामेंटल कॉज के बारे में जानना ज़रूरी है. और ये जो फंडामेंटल कॉज है, इसको इन्वेस्टिगेशन करते वक्त, इन दिस इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि द एसर्टेनेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, सोशल डोमेस्टिक रिलेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, एज, सेक्सुअल फंक्शन एक्सेट्रा आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो ये सारे चीज़ जो है एक क्रॉनिक डिजीज़ का इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, और इसी चीज़ को एक्सेसरी सर्कमस्टेंस कहा जाता है. और एक्सेसरी सर्कमस्टेंस जो वर्ड है ये लिखा है एफोरिज्म नंबर 7 में. एफोरिज्म नंबर 5 में ये सारी चीज़ के बारे में बताया गया है कि क्रॉनिक डिजीज़ में ये सारे चीज़ की ज़रूरत है हम लोगों को टू इन्वेस्टिगेट द फंडामेंटल कॉज. and the word accessory circumstance is given in a bracket in aphorism number 7. यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग ये देख रहे हैं कि accessory circumstance, the additional or apart from the miasmatic cause, circumstantial factors which tend to produce or to maintain or increase the disease, especially of chronic one. ये जो लाइन है ये ऑर्गेनन में नहीं लिखा है, ये एक डेफिनेशन है जिसको आप लिख सकते हो. And these additional contributing factors are known as accessory circumstances. तो accessory circumstance, accessory means additional और circumstances mean whatever is going on, whatever is related or whatever is going on. तो miasmatic treatments के समय में एक पेशेंट किस किस चीज़ के द्वारा अफेक्टेड हो सकता है, इसको जैसे कि पेशेंट का सिम्टम जो भी बताएंगे तो उस सिम्टम तो हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देंगे. साथ साथ उस पेशेंट का जो सराउंडिंग्स है, उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका मोड ऑफ लिविंग है, कैसे उसका लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है. इससे हम लोगों को मेंटेनिंग कॉज और फंडामेंटल कॉज के बारे में मालूम पड़ जाएगा. अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म नंबर 5, अब ये जो लिखा हुआ है ये है एक्सेसरी सर्कमस्टेंस का जो पार्ट. ये एफोरिज्म नंबर 5 का
मतलब एकदम एंड पार्ट में लिखा है, हिज मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, हिज ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, his social and domestic relation, his age, sexual functions, etc. are to be taken into consideration. तो ये आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन यहाँ तक लिखा है एफोर्जन नंबर 5 में, और इसी चीज़ को बोलते हैं एक्सेसरी सर्कमस्टेंस। तो इसमें ना आप एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना कि द पॉइंट्स व्हाट एवर इज गिवन इन दिस लाइन है। तो एक बार फिर से आप देखो, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन, एज, सेक्सुअल फंक्शन, ये सारे चीज़ जो है ये एडिशनली हमको उस पेशेंट से लेना होगा। एडिशनली हमको उस पेशेंट का जो हिस्ट्री है या उनसे बातचीत करके इनके बारे में जानना होगा, और ये सारे चीज़ के साथ जो है हम लोग का मेडिसिन सिलेक्शन, हम लोग का जो ट्रीटमेंट है ये कम्प्लीटली रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनर ऑफ मेडिसिन एफोर्जन नंबर 94, मैं स्पेशली अभी 94 क्योंकि आपका सिलेबस में है अपन जा सकते हैं, लेकिन 94 के बारे में मैं एक सेपरेट एक दूसरा एक लेक्चर रखूँगा जहाँ पे ये केस टेकिंग के बारे में जब हम बताएंगे तो उस वक्त जो है कि 94 को बहुत अच्छे से और समझ जाएंगे, क्योंकि 83 से 104 है केस टेकिंग, और 94 एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे हम लोग एक के बाद एक 93, 94, 95, 96 ये जिसमें ऑब्वियस कॉज लिखा है, इस टाइप का पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के बारे में लिखा है, और भी कुछ है जो हम लोगों का केस टेकिंग में एक क्रॉनिक डिजीज़ में जानने का ज़रूरत है। स्टिल यहाँ पे 94th एफोरिज्म के में जो लिखा है वो भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। While inquiring into the state of chronic diseases, the particular circumstances of the patient with regard to his ordinary occupation, his usual mode of living and diet, his domestic situation, and so forth must be well considered and scrutinized to ascertain what there is in them that may tend to produce or to maintain disease, in order that by their removal the recovery may be promoted. इस पे ये कहा गया है कि क्रॉनिक डिजीज़ में कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के बारे में पेशेंट से हम लोग को जानना ज़रूरी है, और ये चाहे कौन से चीज़ है जैसे कि ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग एंड डाइट, डोमेस्टिक सिचुएशन, ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से जानकारी लेना ज़रूरी है। और इसमें भी आप लोग देख रहे हो कि ये सारे चीज़ जो है पेशेंट का डायग्नोसिस, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट या पेशेंट का सिम्टम से थोड़ा सा अलग है, ये एडिशनल है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस ये शब्द लिया गया है एफोर्जन नंबर 94 में। दिस इज़ द सेम थिंग जिसको एक्सेसरी सर्कमस्टेंस एफोर्जन नंबर 5 में और 7 में इसका नाम लिया गया। तो बोथ आर द सेम थिंग हियर। Now we are coming to the points of these accessory circumstances. फर्स्ट ऑफ ऑल ascertainable physical constitution of the patient, मैं पहले 2 बार बोल चुका हूँ या तीसरी बार है। अच्छा, ये क्यों तीसरी बार है? क्योंकि आप जो है ना रट लो इस चीज़ को, एंड व्हेन यू आर you will in your exam, in the practical viva also and in the theory also, you have to write all these points. The ascertainable physical constitution of the patient, his moral and intellectual character, his occupation, mode of living and habit, social and domestic relation, age, sexual function, etc. ये एफोर्जन नंबर 5 में लिखा है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस। एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हैनीमैन ने जितना पॉइंट्स इधर लिखे हैं इसके साथ एक एक्सेट्रा जुड़े हैं, ETC एक एक्सेट्रा जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीज़ें हो सकते हैं जिसको हम लोग एक्सेसरी सर्कमस्टेंस में काउंट कर सकते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस द पॉइंट्स समव्हाट सेपरेटली, छोटा छोटा करके डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ascertainable फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं, इसका डेफिनेशन इस स्लाइड में लिखा है। Constitution is that aggregate of hereditary character influenced more or less by environment which determines the individual's reaction, successful or unsuccessful, to the stress of the environment. तो एक ये हेरिडिटरी कैरेक्टर है और एक फिजिकल मेकअप और फिजिकल मेकअप ऑफ द पर्सन जिसको हम बोलते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोग देखते हैं
कि अलग अलग इस दुनिया में जितने सारे लोग हैं, इनका जो बनावट है, इनका जो हाउ द पर्सन लुक्स, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द पर्सन इज़ हैविंग फिजिकली, तो इनके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका हैबिट्स, इनका लाइकिंग, इनके फंक्शंस ऑफ द बॉडी, बीमार पड़ने का जो टेंडेंसी है, ये बहुत सारे चीज़ इससे रिलेट होता है। तो वी सी दैट कॉन्स्टिट्यूशन लेके जहाँ पे फिजियोग्नोमी और एंथ्रोपोलॉजी में जहाँ पे द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग, यहाँ पे बहुत काम हो चुका है। और हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिलोसोफर्स, ऑब्जर्वर्स को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बोलते हुए, लिखते हुए हमने देखा भी है। उनका फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेवल, द हाइड्रोजेनॉइड, नाइट्रोजेनॉइड एंड कार्बोनाइट्रोजेनॉइड एंड ऑक्सीजनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन वॉन ग्रेवल ने दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे और फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अपना एक सेपरेट सब्जेक्ट है, सेपरेट स्टडी है, जिससे हम ह्यूमन बींग्स को समझ पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हेरिडिटी एंड फिजिकल मेकअप। तो हमारे क्रॉनिक डिजीज़ में इसका क्या काम है? अब देखोगे कि जो जहाँ भी हमारे मेट्रिया मेडिका है, एक तो वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन है, एकदम शुरू में सारे मेट्रिया मेडिका में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा थे, किस टाइप के पर्सन के ऊपर ये वो मेडिसिन जो बहुत अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जांपल फैटी, फ्लैवी, चबी, इस टाइप का ऐसे इस टाइप का देखने में जो लोग हैं, इसमें कैल्किरिया कार्ब बहुत, ये देखने में ही हम बता देते हैं कि ये तो कैल्किरिया कार्ब है। तो ये क्या ना, कॉन्स्टिट्यूशन पे से हम बता रहे हैं। अभी कि पेशेंट ने अगर कोई सिम्टम नहीं भी दिया होगा, बोले देखो वो जा रहा है, वो कैल्किरिया कार्ब है। जो लोग होम्योपैथी में ऐसे पढ़ते हैं तो वो इंसान को देख के ही बता देते हैं कि ये मेडिसिन वाला बात है। फिर उनका सिम्टम का अकॉर्डिंगली आएगा कि क्या ज़रूरत क्या है उसको, उस सिम्टम के अकॉर्डिंगली अपन देखेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेयर वी कैन सिलेक्ट आवर मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट ओनली दैट, उस पेशेंट को उसका मैथमेटिक बैकग्राउंड के साथ ये रिलेटेड होते हैं, और डिजीज़ डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस में भी कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर वी कैन अंडरस्टैंड द मेडिसिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, नाउ ऑक्यूपेशन, अ पर्सन्स यूजुअल और प्रिंसिपल वर्क और बिजनेस। ऑक्यूपेशन में मतलब जो काम कोई बंदा जो करता है, तो दैट इज़ द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कॉजेशन ऑफ द डिजीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को कई बार ऐसा होता है कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, जो है ना, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो जाते हैं। जैसे कि इफ़ यू सी मेनी पेशेंट्स हु वर्क इन एज नाइट गार्ड, इनको बहुत कॉमनली एक IBS और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत होता है। तो हम लोग को उनको कहना है कि आपका जो ऑक्यूपेशनल जो टाइम है, इस टाइम को थोड़ा चेंज करिए, जो भी है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को उस पेशेंट, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जितना भी हम मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन से कंप्लीट क्योर नहीं हो पाएगा जब तक हम इनका ये जो लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी ऑक्यूपेशन है जिसमें कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होगा, या ऐसे कोई बात है जहाँ पे जैसे कि सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस करके डिजीजेस होते हैं, जो लंग्स में सिलिकॉन टाइप का चीज़, जो लोग ऐसे सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, पत्थर को काटने वाला जो होता है ना फैक्ट्री, उसमें काम करते हैं, इनको इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। इनको मेडिसिन देकर आप कहाँ तक ठीक करोगे जब तक इनका ऑक्यूपेशन में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ये मेंटेनिंग कॉज इनका बना रहेगा। मेंटल स्ट्रेस, जैसे कि बहुत सारे जगह में अपन देखते हैं कि द पेशेंट इज़ इन सच ए जॉब जो है, देयर इज़ अ सीवियर मेंटल स्ट्रेस, तो इस कारण से वो बीमार पड़ रहे हैं, तो वो भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऑक्यूपेशन जो है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको हर पेशेंट से ये पूछना भी है। ना मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट, किस टाइप के, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको हम 2-5 मिनट में बोलना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी एक बात है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के अंदर नहीं है, दिस इज़ वी कैन से द रेफरेंस, ये हम लोगों ने बनाया। पर्सन एंगेज्ड इन हाईली इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल वर्क,
तो जो बहुत ही ब्रेन वाला काम करते हैं उनके लिए उनके जो डिजीजेस है या उनका जिस टाइप के जो चीज़ है, तो जैसे कि जो म्याज़म है, ये भी हम लोग इस टाइप का समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लेबर वाले काम करते हैं, जिनका दिमाग का काम ज़्यादा नहीं है लेकिन फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो उनको जैसे जो डाल ब्रेन होता है ये साइकोटिक सिफिलिटिक में जाता है, जो सीवियरली इंटेलिजेंट होता है ये सोरा में आता है। तो हम लोग को जो है कि अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट उनका म्याजमेटिक बैकग्राउंड भी हम समझ सकते हैं। ऑक्यूपेशन में जैसे सेडेंटरी ऑक्यूपेशन है या उसका जो मोड ऑफ लिविंग एंड हैबिट में जैसे कि कोई ऐसे होता है कि स्लीप वेरी लिटिल, आज का ज़माने में ये बहुत आ गया कि यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड कनेक्टिंग टू द सोशल मीडिया ऑल द टाइम, इसमें ब्रेन में, आँखों में और टोटल बॉडी का एक असर होता है जहाँ पे स्लीप बहुत कम होते हैं। और ऐसा भी होता है कि ऐसा भी कुछ प्रोफेशंस होता है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो रेस्ट लेने का टाइम बहुत कम होता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हैबिट क्या है, अगर कोई एडिक्शन है क्या है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द लाइफ एज वेल एज द डिजीज कंडीशन ऑफ द person. So we have to take a very eager note regarding this thing from each and every patient. Now age is one of the very important factor where we see that different types of diseases are coming in different ages. एज के अकॉर्डिंगली हम लोग का मेट्रिया में भी डिवीजन है कि कौन सा मेडिसिन बच्चों में ज़्यादा काम करते हैं, कौन सा मेडिसिन जेरियाट्रिक्स में, या कौन सा मेडिसिन मेल में फीमेल में काम करता है। तो एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ससेप्टिबिलिटी भी अकॉर्डिंग टू द एज जो है कि ओल्ड एज में ससेप्टिबिलिटी लो हो जाता है, यंग एज में या सेंसिटिव पर्सन में ससेप्टिबिलिटी हाई होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो एज है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड the medicine as well as the disease. It is a very important factor. Sexual function, this is one of the very important part where जनरली इस चीज़ को डिस्कस करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट भी होता है, बट इन एज अ मेडिकल पर्सन, एज अ डॉक्टर, there are some important things which is related to this, particularly the worries and anxieties and the stress and strain of particularly in the village and uneducated areas. इसमें इसका एक बैड इफेक्ट और मोरालिटी वाला एक बैड इफेक्ट होता है। देयर आर द रिलेशनशिप विद इन द फैमिलीज, तो इसमें भी कुछ एक बात है कि जहाँ पे इन मैनी फैमिलीज where their husband wife relationships है, अदर देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड अदर सच थिंग्स, जैसे कि हम लोग साइकोसिस और सिफिलिस में अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुआ, तो उसमें जो है ना इम्प्रॉपर क्वेश्चन से शुरू हुआ। तो ये सारे चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। सो दिस इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड कुछ पॉइंट मेरे ख्याल से इस एक स्लाइड और होना चाहिए था। एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एफोरिज्म, दैट इज़ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। एक पॉइंट इस स्लाइड से शायद मिस हो गया, तो मैं बता देता हूँ ये चीज़ को। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मोरालिटी जिनका हाई है ऑब्वियसली वो सोरा होते हैं। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली लोगों का सोच समझ एंड सोच के अकॉर्डिंगली उनका बॉडी फिजिकल एंड मेंटल फंक्शंस, उसका डेली लाइफ, डेली डूइंग, एवरीथिंग इज को रिलेटेड। तो मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। हम लोग केंट का फिलोसफी में बाद में देखेंगे कि हाउ द विल एंड अंडरस्टैंडिंग कंस्टिट्यूट्स अ मैन। तो इसका ये मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर से काफ़ी कुछ रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए जो है कि वी हैव टू टेक नोट ऑफ दिस ऑल्सो। नाउ कमिंग टू द ETC एक्सेट्रा मीन्स देयर आर सम अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऑल्सो विच यू कैन कंसिडर। उसमें कुछ प्रोबेबल फैक्टर्स हमने इधर डाला है। इट इज़ नॉट रिटन इन दिस ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बट स्कैटर्डली बहुत जगह में ऑर्गन से जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को यहीं से मिल जाता है, जैसे कि और मेट्रिया मेडिका में भी जो जिस टाइप के सिम्टम्स आते हैं उसके बेसिस में ये लिया गया, जैसे कि डाइट, एनवायरनमेंट, हाउसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन, इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन, रिलीजियस बिलीफ एक्सेट्रा।
तो ये और भी सारे चीज़ हो सकता है। तो इसमें जैसे कि डाइट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आई कैन टेल यू दैट डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ पेशेंट। तो व्हाट डाइट ही इज़ टेकिंग, क्योंकि इंसान तो बन गया, जन्म ले लिया, उसके बाद उसके शरीर में एयर, वाटर एंड फूड जो वो इनटेक कर रहा है, और उसके हिसाब से जितना उसका फिजिकल वर्क होगा ये उसका फिजिक बनाएगा, और उसका जो कल्चरल एनवायरनमेंट, उसका जो घर और बाहर के जो संगत, ये उसका मेंटलिटी तैयार करेगा, कल्चर तैयार करेगा, और उसका जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, जहाँ जहाँ उसको कोई जगह पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो स्कूल मिलेगा, जो कॉलेज मिलेगा, ऑफिस मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका जीवन का विकास का जो है ये इसका रास्ता मिलेगा। सो डाइट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फिजिकल मेकअप। हम लोग ये देखते हैं, एक एग्जांपल और दे दूं, जैसे कि रॉबर्ट्स फिलोसफी में सोरा के बारे में जब बताया गया, तो सोरा और डेफिशिएंसी कहा गया कि डेफिशिएंसी से सारे डिजीज़ का जड़ शुरू होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको पेशेंट का डाइट देखना है। एनवायरनमेंट, एयर, सॉइल, वाटर, तो हाउ मच प्यूरीफाई कंडीशन में वो पर्सन है ये भी देखने की ज़रूरत है, और उसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। हाउसिंग, वेंटिलेशन, ये देखना है। इकोनॉमिक कंडीशन, आज का डेट में इकोनॉमी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन। तो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कितना पैसा उसको वो कमाता है, और उसके हिसाब से वो कितना चिंतित है या नहीं है। तो हर कोई चीज़ दिस कम्स अंडर आवर एक्सेसरी सर्कमस्टेंस प्रैक्टिकली इन द केस टेकिंग। इग्नोरेंस, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनका कुछ लोग उनको सम्मान करे, कुछ लोग उनको प्यार करे, कुछ लोग उनका देखभाल करे, ये उसका एक सोसाइटी हो। ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल, और कई बार जो है कि कभी अपनों से, कभी मतलब एनवायरनमेंट से उनको कुछ हार्ट मिलता है या कोई इग्नोरेंस मिलता है, तो ये भी उसका अफेक्ट कर जाता है। ये भी एक कॉजिशन होता है इसका डिजीज़ के पीछे, और या तो मेंटेनिंग कॉज में भी ये आ सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। सुपरस्टिशन, ये अंधविश्वास जो होता है, इसमें कई बार कुछ कॉजिशन भी हो जाता है, या कभी कुछ मन के जो रिजिडिटी है ये सारे चीज़ बन जाता है। सेम विद द रिलीजियस बिलीफ। तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग एक्सेसरी सर्कमस्टेंस में देख सकते हैं, लिख सकते हैं। And so finally, what is the importance of the accessory circumstances? So we can say that this accessory circumstance should be find out and removed wherever it is applicable, and to understand the miasm and to understand the मेंटेनिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज और मेंटेनिंग कॉज को समझने के लिए एक्सेसरी सर्कमस्टेंस बहुत जरूरी है। So this is all about accessory circumstance. What will be your question? Your question is what is accessory circumstance? Describe the importance of accessory circumstance to treat a chronic disease. And separately छोटा छोटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, what do you mean by the moral and intellectual character, what is the importance of occupation in a disease। तो ऐसे जो अलग अलग पॉइंट है, इसका अलग अलग जो इम्पोर्टेंस है, जो कि आप लोग लिखोगे जैसे, तो उसी में आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, उसी का शॉर्ट फॉर्म में 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी ये हो सकता है। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट इज accessory circumstance and how accessory circumstance is related with the homeopathic treatment. Thank you.